Good morning, everybody. Good morning. Uh, okay, so welcome to a small talk, and today episode is all about running. So before I invite our guest, I would like to ask one thing: do you have a dream to run? Probably, the reason should be very clear before you dream about it. You might have question that what running can bring for me and what is the benefit of running, right? And to be specific, how running brings positivity and impacts our decision making, which is agenda of today's discussion. And for that I have invited a very special guest who is going to enlighten us with his experience and thought that how running can impact our decision making skill, also brings positivity in us. And I am glad to invite our guest today's guest, and that is Raj Kumar Shamal sir, who is a certified uh, life coach, former professional, also NLP certified trainer, and the most importantly, he is a marathon runner who believes that we are capable of anything if if we only believe that. So without any delay, let me welcome and invite our today's guest, who is none other than sir. Good morning, whoever is watching. Good Good morning, morning, Piyush. sir. Namaskar. Am I Good. audible, Piyush? Yes, you are very much audible, sir, and I'm sure you are outside right now, and you are Yeah, fully just uh, you are in a position to run. I think I, मुझे I've right. just completed my run today. Yeah. Okay. So how are you feeling, sir, in this morning? You can see the background. It's like first time in Mumbai we are experiencing this foggy climate. So it's a Yeah. good one. Okay. Yeah. I'm very excited, sir. Running is something which we generally dream, but we are afraid of that. मतलब रनिंग जाना है तो सुबह उठना पड़ेगा, बहुत सारी एक तरह से डाइटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा. So today you are going to enlighten us that how running can bring more positivity within us, also how running can impact our decision making. So the very first question, sir, and I forgot to welcome you, sir. Welcome on this small talk. That Thank how you. can impact our decision making. Also, how running can bring positivity within us. Please So enlighten. first of all, Thought. Yeah. first of all, Piyush, thank you very much for inviting for your small talk. Yeah. Though your talk name is small, but it's not small. It has a profounding impact in many life. Okay. Right. And the Yeah. best part is that you said how running brings positivity. And then the second is that how running helps you in taking a decision. The first part is that you can see right now it's around 9 a.m. in the morning. You are from Delhi, I am from Mumbai, Yeah. but I have completed my run. The moment you decide that tomorrow morning I'm to going wake up at maybe 5 o'clock or maybe 6 o'clock or maybe 7 o'clock. So the first step you're taken decision, a decision that you will go out and you'll run. So the first step which running learns makes us learn is that you start taking decisions. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, after we get freshen up, what we start thinking that what would be my course of action, how would I talk to my wife or my children or my parents, then how I should drive back to my office or my college or my university, correct? Yeah. Then what I should wear. So all these things is what? It's basically you are taking decisions time and again. So when you wake up in the morning and then you take a decision that yes, I'll go all out and run. Believe me, the feeling is totally, it's a beyond imagination because you have taken a decision और तुमने वो डिसीजन को फुलफिल किया. और अगर सुबह उठ के आपने एक डिसीजन लिया और उसको फुलफिल किया, आपने उसको अकम्प्लिश किया, तो उससे अच्छा फीलिंग और कुछ नहीं हो सकता है. तो वो आपको दिन भर के लिए इतना एनर्जी दे जाएगा कि एंटायर डे विल बी फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ satisfaction, full of happiness.
So Yeah. this is the best part of running. Yeah, and I can totally relate, sir, that when we take a good decision and when we fulfill our own decision, especially in the morning, then we feel good. And if we are not able to fulfill our decision, then we feel regret throughout the day. For an example, if you decided to wake up early in the morning and if you are not able to wake up early in the morning, then you will regret throughout the day कि मैंने आज थोड़ा सा लेट उठा ना, आज मेरा शेड्यूल खराब गया, या दैट विल इम्पैक्ट योर होल शेड्यूल ऑफ थ्रू आउट द डे. और ये सर, तो लेकिन रनिंग के लिए जो आप बता रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग कैसे इम्पैक्ट करेगा हमारे लाइफ में, तो अगर किसी को रनिंग स्टार्ट करनी हो तो कैसे इसके बारे में सोच सकता है? कि बिकॉज सम हाउ वी आर अफ्रेड कि रनिंग करना है तो पूरा एकदम से ड्रेसअप होना पड़ेगा और सुबह उठना पड़ेगा, या मतलब कैसे ये हो सकता है? हाउ वी कैन मेक इट पॉसिबल ये फॉर अस? ये सवाल this question is actually is a very question pertaining question which many of the people जिन्होंने रनिंग स्टार्ट नहीं किया उसको लगता है कि रनिंग बहुत बड़ा हवा है, बट एक्चुअली कुछ भी नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. आप सुबह उठिए, अपना दिनचर्या का जो काम होता है फ्रेशन अप हो जाइए. देन इफ यू हैव ए रनिंग शूज, जूता डालिए. इफ यू हैव a t-shirt, obviously you have a t-shirt and a track pant or a half shorts or something like that, wear that and just go all out. the moment आपने ये ड्रेस पहन के घर से बाहर निकले, तो आपका जो सेल्फ एस्टीम है ना, जो सेल्फ बिलीव है, बिकॉज यू हैड बिलीव्ड दैट यू विल गो आउट, और तुम बाहर निकल गए. सो आपने अपने आप में पॉजिटिविटी इन्फ्यूज कर दिया है. डन. देन सेकेंड स्टेप क्या है? आप जस्ट वॉक कीजिए. वॉक फॉर 5 मिनट्स. देखिए, whoever is watching this live और ये जो देखेंगे इसको, एक सिंपल मंत्र है 5-2-5-2-5-2. मतलब 5 मिनट वॉक कीजिए, ओके 2 मिनट जॉग कीजिए. ओके 5 मिनट वॉक कीजिए, 2 मिनट जॉग कीजिए, और ये कंटिन्यूस कीजिए फॉर 30 मिनट्स. इसको रुकना नहीं है. सो 5-2-5-2-5-2-5-2 आप ये कीजिए 10 से 12 दिन के लिए. वंस यू आर लिटिल बिट, योर बॉडी इज ट्यून्ड, योर मसल्स आर रेडी, योर माइंड इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड. आफ्टर 15th डे, दैट मीन्स 16 दिन से नेक्स्ट 15 दिन के लिए आप उसको 5-3-5-3-5-3 कीजिए. मतलब 5 मिनट वॉकिंग, 3 मिनट ऑफ जॉगिंग. देन ग्रेजुअली फ्रॉम 5 मिनट ऑफ वॉकिंग, 4 मिनट ऑफ जॉगिंग, 5 मिनट ऑफ वॉकिंग, 5 मिनट ऑफ जॉगिंग. धीरे धीरे आप देखेंगे आप हाफ एन आवर बिना रुके आप जॉग कर सकते हैं. ओके सो इट विल जस्ट टेक हार्डली नॉट मोर देन 2 months. बट इसमें एक चीज है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट बिकॉज आपने बताया कि डिसीजन मेकिंग. अब डिसीजन मेकिंग में जैसे आप, आई नो यू आर वर्किंग फॉर ए बिग कंपनी, IT कंपनी. यू आर ऑल्सो डूइंग लॉट ऑफ वर्क फॉर द यंगस्टर्स, जो आप लोगों को हेल्प करते हैं, बच्चों को हेल्प करते हैं, उनका इंग्लिश स्पीकिंग को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ काम करते हैं आप. अगर आप ये काम 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर छोड़ देंगे, तो क्या होगा? लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे. राइट. Correct. So you have to be consistent in your approach. So if you have started this journey of running, so walk and jog, you have to be consistent at least for 21 days. Because if you are consistent for 21 days, you form an habit. और जब आपका habit बन गया, फिर तो और क्या चाहिए आपको? फिर तो आप दौड़ते रहेंगे. A beautiful thought. I remember from Atomic Habit, where author has mentioned कि result doesn't matter, but consistency matters. Initially, you don't care about the result, how much you are able to do, but just care कि आप जो शेड्यूल आपने बनाया है उस पे आप कंसिस्टेंट है कि नहीं. Initially, as you were mentioning, 5 minutes of walking, 2 minutes of jogging. If you keep on doing for certain period of day, definitely it will build a little bit of habit. कंसिस्टेंसी तो ऑटोमेटिक आ जाएगी. आई मीन अगर हम पुश करेंगे अपने आप को, तो आई कैन टोटली रिलेट दिस बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इट वाज अ बिग चैलेंज अहेड ऑफ मी कि अर्ली कैसे उठा जाए. लेकिन मेरा पॉइंट था कि एक बार मतलब कंसिस्टेंसी आ जाए ना, ठीक है, चाहे मतलब कुछ करूँ ना करूँ, लेकिन एक बार उठ करके मतलब अपना शेड्यूल पूरा मार्क कर लूँ कि हाँ मैंने आज वो हो गया, 6 बजे उठ गया. राइट. एंड सेम विद रनिंग. अभी मैं रनिंग से आ रहा हूँ, मैं कल से स्टार्ट किया हूँ. एक्चुअली मेरा माइंड योगा पे ज्यादा स्टिक था. एवरी डे आई यूज टू स्टार्ट योगा अराउंड 6 o'clock. देन आई थॉट कि 2 दिन के लिए टाइम निकालता हूँ, सैटरडे संडे एटलीस्ट, सो दैट आई कैन रन एंड पुश माई
बॉडी लिटिल बिट, आई कैन स्ट्रेच माई बॉडी। तो 2 दिन के लिए गया तो मुझे अच्छा फील हो रहा है अभी दौड़ने के बाद में, ठीक है। एंड एक एनर्जी फ्लो अच्छी हुई है सुबह में। करेक्ट। इसके पीछे पीयूष, देयर इज अ साइंस बिहाइंड दैट, बिकॉज इट्स नॉट दैट राजकुमार सामल आपको बोल रहे हैं या आप बोल रहे हो तो आपको सुनना है, बट देयर इज अ साइंस बिहाइंड दैट। देखिए, एक सिंपल लॉजिक है। द मोमेंट यू स्टार्ट रनिंग, आपका बॉडी में बहुत सारा हार्मोन्स रिलीज होता है, राइट? हार्मोन्स लाइक सेरोटोनिन, हार्मोन्स लाइक डोपामिन। जब आपका बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है, सो दिस ऑल आर हार्मोन्स व्हिच गिव यू प्लेजर, मतलब आपको एक खुश दिलाएगा ये हार्मोन। प्लस डोपामिन ऐसा एक हार्मोन है जिससे आपको ना पेन का एहसास नहीं होगा, यू वोंट फील द पेन। और सेरोटोनिन ऐसा है ना जो आपका प्लेजर दिलाता है। इसलिए आपको देखा, जब आप योगा करते हैं या आप कहीं लॉन्ग वॉक करके आते हैं या रनिंग करके आते हैं, आपको एक अलग सा एहसास होता है, एक मजा आता है। वो जो मजा है ना, बिकॉज ऑफ सेरोटोनिन। और एक और चीज है जो हम लोगों को करना चाहिए। हम लोग सब शहर में रहते हैं, वी ऑल आर स्टूडेंट और डूइंग सम जॉब और वी आर डूइंग सम एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, जहाँ पे अननोइंगली स्ट्रेस धीरे 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 हमारे शरीर में घुस जाता है। सो इफ यू रन, योर cortisol, which is a stress hormone, because the moment you are in stress, body release cortisol। और cortisol क्या करता है? कंट्रोल करता है अपना। cortisol लेवल जो है कंट्रोल हो जाता है अगर आप रन करते हैं। so once your cortisol level is controlled, that means your stress level, your anxiety, आप धीरे 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 काम हो जाएंगे। तो देखिए ना, और क्या चाहिए आपको? आप सुबह 10-15 मिनट दौड़ने के बाद आपका cortisol लेवल कम होता है, आपका प्रेशर कम होता है, आपका एंग्जाइटी कम होता है, आप में एक अलग सा एहसास होता है। यू फील दैट अकम्प्लिशमेंट, दैट आई हैव डन समथिंग। और व्हाट डू यू वांट फॉर लाइफ? और क्या चाहिए पीयूष जी? क्या चाहिए? और ये जानना जरूरी है, बिकॉज व्हेन वी नो व्हाई वी आर डूइंग समथिंग, देन द चांसेस ऑफ डूइंग समथिंग इंक्रीजेस एक्चुअली। एंड कंसिस्टेंसी उसी से बनती है। हमें पता होना चाहिए कि क्यों कर रहा है। द टेक्निकलिटी, आई मीन द इंफॉर्मेशन दैट यू आर सेइंग राइट नाउ, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ। रनिंग से हमें इतनी सारी बेनिफिट मिलती है, राइट? करेक्ट। देखिए, अभी मेरे पीछे देखिए, मेरे पीछे एक बंदा रन कर रहा है, देख रहे हो, एक येलो टी शर्ट पहन के। आप जहाँ पे खड़े हो बहुत, हाँ, लेकिन दिख रहा है थोड़ा थोड़ा वैगली। आई कैन सी दैट। करेक्ट। में कंडीशनिंग ये रहता है थोड़ा कि क्या रनिंग हमें किसी स्पोर्ट्स के लिए करना चाहिए या हमें स्पोर्ट्स आनी चाहिए रनिंग करने के लिए। कुछ ऐसा माइंड में रहता है कि क्रिकेट खेलना है तब रनिंग करना जरूरी है, या फुटबॉल खेलना है तब रनिंग करनी जरूरी है। सो व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? शुड वी रन फॉर ओनली एनी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स और शुड वी मेक इट एज ए हैबिट, एज ए डेली रूटीन? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज आप बात करते हैं कि व्हाई यू शुड रन, बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड द व्हाई पार्ट। हम लोगों ने पढ़ा होगा द गोल्डन सर्कल, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। व्हाई आई एम रनिंग? देखो, रन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आप कोई स्टूडेंट हो, आप कोई पेरेंट हो, आप कोई मदर हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, या आप कोई स्पोर्ट्समैन हो, तो एट एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ रनिंग इज क्रूशल। ऐसा नहीं कि आप क्रिकेट खेलते हैं या लॉन्ग जंप करते हैं या जैवलिन करते हैं या फुटबॉल खेलते हैं तो आपको रनिंग करना है। ऑब्वियसली उसके लिए करना ही करना है, बिकॉज दैट्स योर प्रोफेशनल और दैट्स योर पैशन व्हिच यू आर लिविंग इन। बट इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल, still you should run. Because I said, if you run, one is that your all cortisol level, your dopamine, all those hormonal changes वो होंगे, वो body के लिए अच्छा है। Second, your skin will start glowing, right? Without spending any cream. Because you said. Yeah, and then what happened? Your bones, जो generally after certain age, there is a process known as osteoporosis. और फीमेल में after 45 जो मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस बहुत जल्दी सेट इन होता है। सो योर बोन्स बिकम लिटिल बिट ब्रिटल। जब बोन्स ब्रिटल होता है तो आपका चांसेस होता है कि आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस होता है। सो इफ यू रन, देयर आर मल्टीपल बेनिफिट एंड इट हैज बीन प्रूवन, टेस्टेड एज वेल एज पब्लिश्ड आल्सो, दैट इफ यू रन, योर बोन डजंट बिकम ब्रिटल, योर बोन बिकम स्ट्रॉन्गर। सो दीज आर द मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ रनिंग। और ऐसा नहीं कि आपको खाली कोई स्पोर्ट्स करना है या आपको कोई गेम में जाना है तो आपको रनिंग करना है, ऐसा नहीं है। बिकॉज रनिंग इज बेसिकली एन हैबिट फॉर्मेशन। इफ यू फॉर्म ए हैबिट, वो हैबिट आपका हर जगह काम आए, बिकॉज यू आर फॉर्मिंग एन हैबिट दैट यू वेकिंग अप एंड यू आर मेकिंग योर ओन सेल्फ अवेयरनेस एंड योर सेल्फ बिलीव
कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ. Hmm. So with one strong decision and making a self belief stronger day by day, आप Yeah. अपना विल पावर को बढ़ा रहे हैं. Yeah. और जब विल पावर बढ़ेगा, जब लाइफ में आपको चैलेंजेस मिलेंगे, जब लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, तब आपको यही रनिंग हेल्प करेगा. Yeah. तब जो आपको विल पावर जो स्ट्रांग है वो आपको बोलेगा नहीं, उठ खड़े हो भाग, उठ खड़े हो भाग. And the instant benefit I think we get from running is it allows you to stretch your limit. Like अगर आज मैंने 2 किलोमीटर दौड़ा तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में है कि let me push myself and see if I am capable enough to run for at least 3 kilometers or not. So this gives us some Perfect. challenges, you know, and when we have a challenge then you know we'll feel like doing more and more. Sir, और वन थिंग है, सॉरी, हाँ, वन थिंग आपने बात की कि डिसीजन मेकिंग में कैसे काम आता है ये. जी जी. देखो, nowadays the people those who are at any level, maybe at a junior executive or senior executive or a mid level manager or a senior manager or a strategic head, क्योंकि मैं आज से 8 साल पहले इतना फिट नहीं था. अगर आप मेरे FB पोस्ट में जाएंगे 8 साल पहले में, मैं बहुत अजीब सा दिखता था, मोटोल, करेक्ट. एंड when I started this, because one of my friend suggested me to do this, when I started this, मैंने क्या देखा कि मेरा प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या होता है, हम सबको जब हम लोग मिड लेवल में होते हैं या सीनियर लेवल मैनेजर में होते हैं, हम लोग डिसीजन ले नहीं पाते. सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एन एवरेज मैनेजर एंड अ बेस्ट मैनेजर? Yes. The difference is one, because everyone has the skill, everyone has the will, everyone knows the work properly, but the best thing which makes both them apart is the decision making. Because the most of the professional nowadays, they lack this skill of taking decision. Because Yes. once you take a decision, so you take decision on what? You take decision on some data, Yep. some data point, plus Yep. your own gut feeling, plus your own experience. And then once you take a decision, then you have to stand by the decision. वो डिसीजन सही है या गलत है, आपने लिया है, तो आपको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा. So unfortunately nowadays many managers, they lack this decision taking power, because they feel if I take a decision और डिसीजन गलत हो गया तो क्या होगा. तो रनिंग आपको हेल्प करता है. कैसे? आपने रनिंग स्टार्ट किया, सपोज जैसे आज मैंने रनिंग स्टार्ट किया, मुझे दौड़ना था 21 किलोमीटर, ठीक है, तो मैंने वार्म अप किया 5-10 मिनट के लिए, देन आई स्टार्टेड रनिंग फॉर 5 किलोमीटर. फिर मेरा बॉडी खुलने लग गया. वंस योर बॉडी स्टार्ट ओपन अप, यू स्टार्ट रनिंग स्लोली. मैंने बोला अब मेरा 9 बजे पीयूष से बात करना, तो लेट मी रन लिटिल बिट फास्ट. तो मैंने अपना वॉच को देखा, तो मैंने अपने पेस बढ़ाया. फिर मैंने देखा मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा था, हार्ट रेट ऊपर हो रहा था. देन आई स्लो डाउन सो दैट माई हार्ट रेट गोज डाउन. सो अब देखो ना, एवरी स्टेप आई टेक ए डिसीजन कि मैं फास्ट दौड़ूंगा, स्लो दौड़ूंगा, फास्ट दौड़ूंगा, स्लो दौड़ूंगा. व्हाट शुड बी माई स्ट्राइड्स, मतलब कितने लंबा पाउंड डालू मैं, कब मैं पानी पीऊं मैं, व्हाट शुड बी माई हैंड मूवमेंट. सो एवरी टाइम आई एम टेकिंग डिसीजन. और रनिंग करते हो कभी अप हिल आया तो मुझे स्पीड भागना, स्लो भागना है. सो एट एवरी पॉइंट ऑफ योर रनिंग यू स्टार्ट टेकिंग डिसीजन. तो जब आप डिसीजन लेना स्टार्ट करेंगे तो वो आपको आप प्रोफेशनल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में, एज अ स्टूडेंट इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. कुछ ज्यादा हो गया क्या? नहीं सर, मैं इस बात को कनेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज लास्ट डे आई वाज रीडिंग अ बुक वेयर इट वाज मेंशन कि गेम इज अ वेरी गुड एक्टिविटी वेयर यू गेट द इंस्टेंट फीडबैक फॉर योरसेल्फ एंड इंडिविजुअल फीडबैक. एक क्रिकेट में 11 लोग खेलते हैं, बट वो सबको अपना अपना कैपेबिलिटी पता होता है कि मैंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है. सो एनी गेम सॉर्ट ऑफ, ये हम एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अगर लें रनिंग को, तो ये भी एक इंस्टेंट फीडबैक वे है जिसमें आपको पता चलता है कि आप एक सिचुएशन में क्या बेटर डिसीजन ले रहे हो, कब आपको रनिंग करना है, कब आपको पानी पीना है, कब आपको रुकना है. सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ, सर यू मेड अस काउंट all the benefits of running. So this is my own personal silly question that I want to ask, and that is my probably a doubt कि इसकी disadvantage क्या है, because during the COVID I got to know somebody got died from running because he was wearing the mask. So थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, क्या मैं अगर अपने लिमिट को स्ट्रेच कर रहा हूँ तो could there be a point where I have to be very careful while running? आपने this point is very 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 crucial for all the runners. Yeah. Whether it's a new runner or an experienced runner. Yeah. You rightly said that we should stretch our limit. We should stretch our limit, but we should not cross our limit. देखो, stretching और crossing में डिफरेंस है, because stretch करना अच्छा होता है, but we should know what is our limit. Right? अब सबसे simple formula, whoever is watching this, is that
आप अपना हार्ट रेट, जो हार्ट रेट है 220 एक नॉर्मल हार्ट रेट होता है, एवरेज नॉर्मल हार्ट रेट, 220 माइनस योर एज, सपोज आपका एज है 30 इयर्स, Hmm. सो 220 माइनस 30 Hmm. इट बिकम्स 190, Okay. करेक्ट? तो Yeah. 190 आपका जो हुआ इज अ मैक्सिमम हार्ट रेट, Okay. मैक्सिमम हार्ट रेट है। Hmm. आपको 190 का 80% कवर करना है, मतलब आपको रफली अराउंड 170 से ऊपर क्रॉस नहीं करना है। Okay. Okay. अगर आपका हार्ट रेट 170 160 से ऊपर नहीं है, अगर आपका एज 30 है, Hmm. Hmm. सो यू वोंट डाई एट ऑल, क्योंकि आप अपना हार्ट रेट को कंट्रोल करके रन कर रहे हैं। तो Oh. वहां पे आप लिमिट को तो स्ट्रेच कर रहे हैं, बट लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। Hmm. द मोमेंट इट क्रॉसेस 170 180 190, Hmm. chances are there you may add up some complication in your running, during your running or after running you may have some complications. Hmm. So the best part is that you should enjoy running, you should have injury free running, and to have the injury free running एक simple formula सबको याद रखना है, 220 minus your age, Hmm. 220 minus 30 बच गया 190, 190 का 80%, Yeah. तो 190 का 80% रफली अराउंड 160 165 होता है। सो आपको हमेशा 165 से ऊपर आपको क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि दैट इज एन एरोबिक रनिंग, Hmm. राइट? जब आप 160 165 से ऊपर क्रॉस नहीं करेंगे तो आपका हार्ट रेट बढ़ेगा नहीं, हार्ट रेट बढ़ेगा नहीं, आपको हार्ट ज्यादा पंप नहीं करेगा फॉर Right. मोर ब्लड। सो पोस्ट रनिंग आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, और इवन ड्यूरिंग द रनिंग आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे। एंड सेकेंड पार्ट, Okay. ऑब्वियसली कोविड है, आपको मास्क लगाना पड़ेगा, बट Hmm. ट्राई करो, अगर आप रन कर रहे हो आसपास कोई नहीं है तो Hmm. मास्क को खोल के रन करो, क्योंकि Hmm. while running you need oxygen, because your muscles are getting tired, your Okay. muscles need some energy, in each muscle there are mitochondria, उसको Hmm. एनर्जी चाहिए। Hmm. उसको एनर्जी के लिए वन इज ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट जो तुम्हारी बॉडी में है, फैट्स है, शुगर है, वो तो चाहिए ही चाहिए, बट उसको मेटाबॉलिज करने में आपको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, करेक्ट? सो यू नीड ऑक्सीजन। सो ऑब्वियसली यू सेड राइटली, कुछ कुछ इवेंट्स में कुछ कुछ लोग कोलैप्स कर जाते हैं, बहुत लोग मर जाते हैं रनिंग के बाद, बिकॉज दे डोंट टेक केयर ऑफ द हार्ट रेट Yeah. एंड दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर ओन बॉडी। और एक और चीज अपने आप को समझना चाहिए, शुड ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी, यू शुड ऑलवेज लव योर बॉडी। आप, मैंने बताया आप रन कर रहे हैं, आपने रनिंग के लिए स्टार्ट किया, देन यू रियलाइज दैट आफ्टर सर्टेन टाइम माई हार्ट बीट हैज गॉन अप एंड आई एम नॉट एबल टू टेक ब्रीथ प्रॉपरली, or I'm Hmm. not feeling comfortable, or I'm feeling little bit dizziness, or feeling little bit uncomfortable. So what you should do? You should stop there, Yeah. because you are not running an Olympics or some national event. Right. You're doing it for own fun, for own body. Right. So the moment you start loving yourself, listening to your body, Yeah. then Love you. definitely you'll. Yeah. Love Yeah, yourself. Take care of yourself. And I got this line that stretch your limit, but don't cross your limit. You should know your limit, that how much you can do it. Don't follow with the others' opinion. Just know your limit. That is a very good correct. point. I got my answer actually. एक चीज करता हूँ पीयूष, मैं जनरली वन आई एम इन दिस पोजिशन वेयर आई टेक लॉट ऑफ इंटरव्यू विद द कैंडिडेट्स। Okay. जब मैं लड़कों का, बच्चों का या किसी सीनियर का इंटरव्यू लेता हूँ ना, Hmm. आई ऑलवेज आस्क 3 क्वेश्चन टू देम। Okay. फर्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि हाल फिलहाल में, Hmm. रिसेंटली, Hmm. व्हाट इज द बुक, विच इज द बुक विच यू हैव रेड। Okay. अगर वो बोल सकता है कि सपोज आई हैव रेड मे बी एटीट्यूड इज एवरीथिंग फ्रॉम जेफ केलर, और मे बी रिच डैड पुअर डैड, और मे बी द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, और मे बी एटॉमिक हैबिट्स, और मे बी डीप वर्क, व्हाटएवर, Hmm. देन आई आस्क कि उस बुक का कैन यू टेल मी 2 or 3 लाइन्स जो आपको हिट करता है, करेक्ट? एंड सेकेंड थिंग आई आस्क कि आप जो दिन में सुबह उठ के क्या करते हो, व्हाट यू डू इन द मॉर्निंग, व्हाट इज योर मॉर्निंग रिचुअल्स, Hmm. व्हाट इज योर मॉर्निंग हैबिट्स। Hmm. एंड थर्ड चीज मैं पूछता हूँ, whom you consider as a hero, Hmm. or whom you follow, or whom you feel that he is a mentor, he or she. अगर वो बोलता, सपोज वो बोलता XYZ, तो मैं पूछता क्यों, उनमें 3 चीज क्या अच्छा लगता है आपको। बिलीव मी पीयूष, अगर कोई कैंडिडेट 3 चीज का सवाल आंसर दे देता मुझे, और देन मैं क्या लगाता हूँ, अगर कोई आदमी Hmm. अपना सेल्फ लर्निंग में टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, Hmm. सो दैट मीन ही इज लविंग हिमसेल्फ, अपने Yep. आप से प्यार करता है। Yep. कोई अगर सुबह उठ के वॉकिंग करता है या जॉगिंग करता है, हाय Hmm. स्मृति ने भी ज्वाइन किया है अभी, Good morning. गुड मॉर्निंग स्मृति। तो सपोज समबडी हैज वेक अप इन द मॉर्निंग और जॉगिंग करता है या वो योगा करता है, तो दैट मीन्स वो अपना शरीर को प्यार करता है। Right.
If somebody follows someone as a mentor or has some vision, some Okay. goal, that means उसका जो thought process है वो बहुत progressive है. Right. Right. Believe me, मैं उसके बाद उससे कोई सवाल नहीं पूछता हूँ. क्योंकि आपको अपना टीम में कैसा चाहिए? आपको टीम में you want a person who should be progressive thought process, who should love himself, who should have a very good attitude and very good habits. So with these 3 questions, you get all the answers. Yeah, these 3 questions actually define the person, which kind of person he is or Sanket she. ने भी join किया है. Sanket Patel, he is from my own company. We work for together. I think you all are making your morning great with this insightful thought. स्पेशली जो हेल्थ के लिए है, हम सब चीजों को तो इम्पोर्टेंस देते ही हैं लाइफ में, लेकिन हेल्थ थोड़ा सा इग्नोरेंट रह जाता है somehow. ठीक है. इसमें पीयूष जी, मैं I'll add one thing. I know I'm speaking more. मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ. नहीं always great to listen you because you are sharing thoughtful experience. There are multiple trials हो चुके हैं, publish हुआ है कि if you run, if you jog, if you do some exercise where you sweat, आपका जो हिपोकैम्पस है, हिपोकैम्पस जहाँ पे आपका सारा मेमोरी स्टोर होता है, right. वो एनलार्ज होता है. और ये प्रूवन है. और आप छोड़िए रनिंग, छोड़िए, आप खाली ये सोचिए ना, इफ यू जस्ट स्टार्ट इमेजिनिंग दैट आई एम गोइंग टू रन, बिलीव मी, जस्ट विद इमेजिनिंग ना, आपका अंदर में से सब हार्मोन्स रिलीज होना शुरू होता है. दैट वाज अ ट्रायल. उन्होंने क्या किया था, एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को खेलने बोला, दूसरा ग्रुप ऑफ प्लेयर को बोला बैठ के आप गेम को देखो. करेक्ट. द थर्ड ग्रुप ऑफ प्लेयर्स दे सेड यू टेक रेस्ट. आफ्टर 15 days द ग्रुप ऑफ प्लेयर दोज हु आर ओनली वाचिंग द गेम, जो खाली देख रहे थे गेम को, उनका हिपोकैम्पस में साइज जो है थोड़ा बड़ा होने लगा. दैट मीन्स आप रनिंग छोड़ो, आप रनिंग का सोच से ही, जस्ट बाय थिंकिंग दैट आई एम गोइंग टू रन, आई एम गोइंग टू डू योगा, आई एम गोइंग टू डू प्ले बैडमिंटन और क्रिकेट और फुटबॉल, आपका अंदर बॉडी में ना ऑटोमेटिकली सेरोटोनिन, ऑटोमेटिकली डोपामिन रिलीज होना शुरू हो जाता है. जस्ट इमेजिन करो, इफ यू स्टार्ट डूइंग दोस थिंग्स, हाउ ब्यूटीफुल यू विल बी. और यू राइटली सेड, लाइफ के 4 पिलर होता है. माइंडसेट, जो आपको डिसाइड, जो आपको बताता है कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर. दूसरा होता है सोल सेट, आप अंदर से कैसा इंसान है. थर्ड होता है वेल सेट, ऑब्वियसली पैसा जरूरत है. और फोर्थ एंड फॉरमोस्ट होता है द हेल्थ सेट. आप इमेजिन कीजिए, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है, सोल सेट बहुत अच्छा है, वेल सेट भी बहुत अच्छा है, बहुत पैसा है, बट आप वॉक नहीं कर पाते. यू सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, सफरिंग फ्रॉम सम कार्डिक एलिमेंट. आपको कैसा लगेगा बताओ? नहीं अच्छा लगेगा ना? नहीं अच्छा लगेगा. सो ऑल दस 4 पिलर हैज टू बी बैलेंस. और बिलीव मी, यंगस्टर्स को खाली आप ध्यान रखो अपना वेल सेट, अपना माइंड सेट पे और अपना हेल्थ सेट पे. जब माइंड सेट को स्ट्रांग रखो, हेल्थ सेट को स्ट्रांग रखो, अपने आप तुम्हारा वेल सेट आएगा. अपने आप आना है. ये एक लाइन मुझे याद आ रहा है सर आपकी बात सुन करके, कि सब चीज लॉस हो जाए आपकी जिंदगी में तो रिकवर हो सकता है, लेकिन हेल्थ से कुछ लॉस हो जाए ना, तो वो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आप उसको रिकवर कर पाओ. राइट. परफेक्ट. वी शुड केयर हेल्थ विद ऑटमोस्ट प्रायोरिटी, और जितना हो सके हमें ध्यान देना चाहिए अपने हेल्थ को लेकर. सर, आई ऑलवेज बिलीव इन दिस दैट knowledge is not useful until unless you implement in your life. Whatever we are listening to you, if we are not able to utilize in our life, there is no point of listening to you. Okay. And I think we are actually wasting our time. That means so one baby step which we could take right away, take right away, जो हम मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो रनिंग में हेल्प करे, एक बेबी स्टेप जो अभी के अभी हम ले सकते हैं, वो क्या हो सकता है? कुछ नहीं, अभी 9:30 हो रहा है जी. आप कहीं भी हो, अगर आप इंडिया में हो, जस्ट जूता डालिए, टी शर्ट डालिए, शॉर्ट्स डालिए और वॉक पे चले जाइए. संडे है, ऑफिस तो है नहीं, कॉलेज भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है. टेक ए बेबी स्टेप, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ एंड टेक वन स्टेप. आप कुछ मत करो, आप 5 मिनट के लिए वॉक करके आ जाओ बस. और आप कैलेंडर में, घर पे कैलेंडर में लिखो 5 मिनट और डेट डाल दो. कल आपको लगेगा यार आज मैं 6 मिनट करूं क्या, परसों 7 मिनट करूं क्या, बस टेक दिस बेबी स्टेप. एंड पीयूष, व्हाट यू सेइंग राइट. देखो
समटाइम हम लोग कभी कभी ना वी फील लिटिल बिट डीमोटिवेटेड कि यार हम लोग इतना अच्छा बातें बोल रहे हैं, व्हाई पीपल आर नॉट लिसनिंग, है ना, व्हाई पीपल आर नॉट फॉलोइंग. बिलीव मी, पीपल वुड फॉलो, पीपल वुड लिसन, बट लोगों को कब सुनते जब झटका लगता है. करेक्ट. लेकिन मैं बोलता हूँ जरूर थोड़ी ना कि आपको झटका लगने के बाद आपको सुधरना है. दूसरे के मिस्टेक से भी तो सीखी जा सकती है, देख करके भी चीजें. करेक्ट. करेक्ट. So doesn't I always use this word, why to reinvent wheel again and again. है कि नहीं भाई. अगर मेरे एक फ्रेंड had undergone some cardiac arrest or is suffering from diabetes or suffering from back pain, low pain, so उससे तो मैं एक्सपीरियंस ले लूँ ना. Why I should wait कि मुझे जब डायबिटीज होगा तब मैं वॉक करूंगा, क्यों भाई. Seriously. So Piyush, you are doing an excellent work. I'm telling you, believe me, bro. आप जो कर रहे हैं ना, at this age, you are doing an excellent job. Yes. You are making people aware that just go out of your bed, start walking, and all. Somebody has written BDNF, which is miracle. Yeah. Smriti ने लिखा because Smriti is a good yoga instructor. Yes, sir. Yes, वो क्या लिखती है? She is teaching yoga and she is more into the health. I think she's doing marvelous job. I think thank you everyone for joining. Anjali has joined, and thank you for listening us. Yeah, Anjali is also a very good speaker. She speaks a lot good. She's also a good friend of mine. So just to throw 1 minute about Ashutosh Raj also has joined. Yeah. देखो अभी 9:30 बजते लोग ज्वाइन करने लग गया है. देखो Smriti has written about BDNF. Just to throw something about what is BDNF, it is brain derived neurotropic factor. Okay. Right. Recently हम लोग ने बचपन में क्या सुना कि after 4 to 5 years आपका ब्रेन डेवलप नहीं होता है, हमें ये बताया गया है. अच्छा. But fact of the matter remains is that as you grow old, there are sciences, there are references जहाँ पे न्यूरोप्लास्टिसिटी होता है. ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर क्या होता है? इफ यू रन, इफ यू डू सम एक्सरसाइज, हेवी एक्सरसाइज इन माइस, इन कैट्स, वहां पे क्या बताया गया है? इफ यू स्प्रिंकल दिस ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, देयर आर साइंसेस व्हिच सेज दैट आपका ब्रेन का जो एक्सॉन और टेंडन्स होते हैं ना, वो ग्रो होना शुरू होता है. दैट कीप्स ग्रोइंग, सो योर ब्रेन गेट एनलार्ज. एंड लास्ट 7 to 8 years there are a lot of trials has been done on BADNF as well as neuroplasticity, और clearly बताते हैं कि if you even at any point of age you start running, you start walking, you start doing some jogging, आपका जो हिपोकैम्पस है वो बढ़ता है, and that because of this BDNF. So Smriti, thank you very much for taking out this very wonderful topic of BDNF. She says that 20 minutes movement in early morning leads to BDNF. Smriti तो मतलब she is a great teacher, so yeah, she starts speaking, she can speak long time. Yeah, absolutely. Most of us are not aware about this all technical term, but yes, something we are getting to know that okay, this is for our health, this is for our improvement. Of course, if our brain is improving, then we are going to utilize full potential of our self. So that's a very इसमें good thing. पीयूष जी, उसमें you said full potential. इसमें एक ही चीज याद आ रहा मुझे. देखो, first thing is that I have a question for all of you. Okay. Do you love yourself? आप अपने आप से प्यार करते हैं ना? फिर इफ यू लव योर सेल्फ, और क्या चाहिए? दिस इज योर बॉडी. भाई मैं तो बोलता हूँ, जो आदमी अपने शरीर से लव नहीं कर सकता, मुझसे क्या लव करेगा? द पर्सन हु कैन नॉट लव हिमसेल्फ और हरसेल्फ, हाउ ही कैन टेक केयर ऑफ मी? So start loving yourself. Yeah. Just take a baby step. Yeah. Go out, walk, have a good food, have a great thought, and slowly and steadily you start moving. Or I should announce, in case anyone wants to start running, Okay. I can guide them. Okay. I can take them step by step without even charging even single penny. Wow. So That's you can directly message me. I can tell you the step by step, because there are a lot of nuances in running also. कि running में there कुछ problems भी होते हैं जो आपको बाद में पता लगेगा, which we cannot take up right now. So that also I will take up one by one if anyone wants to know about this. I believe that if you want to build any habit, and one thing is required is your accountability partner. So probably Raj sir can play that role, and he is of course a mentor, life coach, who is going to guide you through
other aspects of the life also, but that will be very powerful if you could take guidance from Raj sir, because he has been in this area for last 7 years. You mentioned I think in running. Yeah, for for last almost 7 years, because college में मैं school में I was a national player. Yep. स्कूल में 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर में नेशनल खेला हुआ मैंने. बट Okay. वही होता है कि कॉलेज के बाहर आने के बाद पापी पेट का सवाल होता है. Sir, राइट, जॉब करना होता है. sir, sir, Smriti is saying I'm afraid of a street dog. So do you feel frightened? डर लग रहा है वहां पे आपको? नहीं. नहीं, कुछ नहीं है, यहाँ पे भी स्ट्रीट डॉग्स है, कुछ नहीं है. डॉग्स और सर वेरी गुड क्रीचर यार, भगवान ने बनाया. अब प्यार से उनको देखो, थोड़ा सा उनको प्यार करो तो दे विल आल्सो कम एंड रन विथ यू. और क्या That's चाहिए, आप रन करो, साथ में डॉग रन कर रहे हैं, व्हाट मोर यू वांट. yeah, that's true. That's true. All right, sir. So thank you for sharing your experience, especially, and enlightening us with your own thought. And that was amazing. And before I leave, I would say that I would like to connect with you on this running, because I want to build this habit. At least I want to do it thrice a week, despite of any schedule. I want to make it as a habit. So definitely I'm gonna connect with you on this, and I am sure you will be helping on this. All right. And Great, Piyush. yeah, thank you everyone for watching this. Before Piyush say thanks and before Piyush say goodbye, I should say you should follow Piyush, because I have seen this young guy very closely. मैं बता रहा हूँ, I am actually shouting out for you. I have seen him very closely. The way he has transformed himself. उसका एक ही formula है. Habit formation. Habit formation, never give up. Small steps. Yep. So follow him. Follow his small talks. देखो ना क्या beautifully design किया, small talk. छोटे छोटे चीजों को build करके बड़े चीज बनाना है. So Piyush, I'm really delighted. I'm really thankful. I'm really grateful that आपने मुझे बुलाया और सुबह ये डिस्कशन करने का मौका मिला. It's all privilege, sir, and definitely this is going to change my life, because I'm going to build this habit. Why I'm announcing this publicly? Because this will be somehow be accountable for me. That okay, I have announced, I have to make it have as a habit. So that's why I'm saying it Right. live, and I'm going to make it happen. And we should say thanks to all those people, those who are watching us. Rishi Yeah. Dixit, who's my good friend, Smriti Garg, Sunita, as well as Anjali was there. So thank you very much, all of you. Yes, guys, let's put on shoes and get out for running. I'll definitely go for running now. Yeah. Chalo, have a wonderful day. Bye bye. Bye bye. Beautiful day, sir.